جب ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کالج بھیجیں. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے یہ کیمپس جو ہے سے بہترین کیمپس ہو. یہاں ڈرگز کا سمجھے کہ وہ مجھے لگتا ہے ناممکن بات. بیروا سب ڈویژن میں جو بیلی برج ہے جو 90s میں آرمی نے تعمیر کیا، جو ایک لڑکی ہے اسے ہر وقت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کم ہے سب سے، اس میں عقل نہیں ہوتی. یتھ واو حالے ژون کو زالے تل کنہ زالے علم تدین پرکت ترٲوِتھ سُہ کتھ پالے سورے علم چھُ الف لام میم. آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا ہمارے ایک نئے شمارے میں ایک نئی جگہ پر نئے لوگوں کے ساتھ. ہمارے پروگرام کا نام ہے روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ فضا نذیر. ناظرین، کشمیر کی اگر بات کروں تو یہاں کا ہر ایک ضلع ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ہر ایک ضلع اپنی خوبیوں سے کشمیر اور کشمیریت کے احساس کو قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے. اسی طرح آج ہم آئے ہیں ضلع بڑگام کے بیروا علاقے میں. ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بڑگام کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ یہاں پہ علمدار کشمیر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ ہے. تو اتنی رچ لیگیسی کے ساتھ آئیے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور کرتے ہیں بڑگام کے لوگوں سے بات. یہ کالج صرف کالج تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایک فل فلیجڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. میرا آج تیسرا سال ہے اس کالج میں. میرے خیال سے یہ کالج کافی ہی اچھا ہے اور ان 3 سالوں میں اس نے کافی ترقی کی. We have a good ratio of female students of this area who are pursuing higher education. پچھلے 4-5 سالوں کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی جو ایک انسرٹینٹی ہوتی تھی کشمیر میں، معمولی سے پتھر چلتا تھا تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوتا تھا وہ کالجز پہ ہوتا تھا. کالج کے اسٹوڈنٹس گھر میں بیٹھتے تھے اور اس کا خمیازہ ہمیں آج بھی بھگتنا پڑتا ہے. ایجوکیشن بہت ایکسپینڈ ہو گیا تو ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں ڈفرینٹ کورسز کرنے کے لیے. میں مثال دوں گا، جیسے ہم بچے کو چھوڑتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں تو یا جی سی آر پہ، گوگل کلاس روم پہ یا میل یا واٹ ایور واٹس ایپ گروپ، شام کو آتا ہے کہ یہ ہوم ورک کر کے دیجیے. کالج کا جو بھی یہاں پہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ آپ کو کرا رہے ہیں ان کا آپ بھرپور فائدہ لیں. ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے سوالات کا شمارہ شروع. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بیروا کے ڈگری کالج میں موجود ہیں تو کسی اور کی بات کی جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ بات ہم ایجوکیشن سیکٹر کی کریں. یہاں پہ میرے ساتھ کافی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان سے کہ بڑگام کا ایجوکیشن سیکٹر کیسا ہے. جی، جہاں تک بڑگام کا تعلق ہے، میں پچھلے 5-6 مہینوں سے میں یہاں کام کر رہا ہوں. تو اس کالج کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ کالج 2005 میں اسٹیبلش ہوا ہے اور جس طرح سے اس نے ترقی کی ہے وہ کافی قابل داد ہے. یہاں بہت ہی بہترین ڈپارٹمنٹس ہیں، اچھی سویدھائیں ہیں، فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے. ہماری ایڈوانسڈ لیبس ہیں، ہماری سب سے بہت ہی بہترین جو ہے کمپیوٹر لیب ہے اور اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے اس کالج کا بہت ہی اچھا ہے. چونکہ نیا ہی کالج ہے، جیسے کہ میں نے کہا 2005 میں اسٹیبلش ہوا ہے تو اتنے ہی سالوں میں اتنا کچھ اس نے جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، یہ کافی قابل داد ہے. تو آگے بھی بہت اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں اس کالج کے جن پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ اس ڈسٹرکٹ بڑگام کا ایک بہترین ادارہ ہوگا ڈگری کالج بیروا. اور جس طرح یہاں سول سوسائٹی کا بھی کافی اہم رول ہے اس ادارے کے لیے حوالے سے اور وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کالج صرف کالج تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایک فل فلیجڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. اور اس میں ہم بھی اپنی طرح سے جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، ہماری پرنسپل میڈم بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں نئے نئے پروگرامز انٹروڈیوس کریں اور جن کی اچھی مارکیٹیبلٹی ہو، جن کی امپلائبلٹی ہو، اچھی ہو. اور اس کے علاوہ ہم بھی ایک سب کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی میں ایک فل فلیجڈ یونیورسٹی بننی چاہیے کیونکہ اس ایریا کے اندر
बच्चों को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा जाना। तो इस एरिया में भी अगर ये कॉलेज डेवलप हो जाए, एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बन जाए, तो यहाँ की इस इलाके के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी आसानी होगी। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ये कॉलेज एंड अभी मेरे को यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं। ये कॉलेज बहुत लाइक एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे है एंड स्पोर्ट्स के मामले में भी। दे इन 2 months आई रियलाइज दे कंडक्टेड वेरियस इवेंट्स हियर, वेरियस इवेंट्स दैट वर टाइड अप विद गुड यूनिवर्सिटीज एंड दैट हेल्प स्टूडेंट्स अ लॉट। वी कैन लर्न थिंग्स नॉट ओनली ऑन थ्योरी बेसिस बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं बड़गाम का नहीं हूँ, मैं टंगमर्ग डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज क्योंकि 2 महीने में आई गॉट हाईली एक्सपोजर हेयर, लाइक बहुत सारा एक्सपोजर मिला यहाँ पे, जो कि आई एम थ्रिल्ड टू ज्वाइन, आई वाज थ्रिल्ड टू ज्वाइन दिस कॉलेज एंड आई एम थैंकफुल टू माई डिसीजन जो मैंने लिया यहाँ आने का। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का ताल्लुक है, इट हैज़ अ वेरी रिच लेगेसी ऑफ एजुकेशन. It has produced so many KS and IS officers. We are also on the front side of literary works. We have produced so many poets in Badgam. We have a rich legacy of we have so many poets like Sheikhul Alam. We have Shams Fakir. We have Abdulahad Azad. We have Shamshad Kralawari. And so far as the education system is concerned in the present days, it is the problem today is that the enrollment in the colleges is very low, and that is the fact that we have to accept it. But Degree College Birwa has taken an initiative. We are very committed to bring the students to the college, and for that हमने बहुत सारी activities यहाँ पे शुरू की है, not only in curricular but also in co-curricular activities. Our principal madam has taken the initiative. We have started inter-college competitions. We have started badminton cricket tournament. We have started cricket tournaments here, and also we are planning to start intra-college competitions also. And so that the enrollment that is decreasing rapidly in the colleges, it can be enhanced. और उसके लिए हम जो पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजें, क्योंकि इट इज़ नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम. दे आर लर्निंग थ्रू द प्रोफेसर्स. मेरा भी पहला साल है इस कॉलेज का. जहाँ तक देखा जाए मतलब एजुकेशन यहाँ पर टॉप लेवल की है. हाँ, कुछ कमियाँ हैं कॉलेज में, मतलब वो पूरी हो सकती है. इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छा है. मतलब देखा जाए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें नीचे से यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए. और रही बात स्टाफ की, स्टाफ मेंबर यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है यहाँ पर. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा यहाँ पर कमी है अभी, वो आई थिंक वो पूरी होनी चाहिए. शुरू से इंसान बहुत क्यूरियस था तो जानने के लिए, एक्सप्लोर करने, यूनिवर्स को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए. तो पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था जो बहुत क्यूरियस और वो डिफरेंट थियरीज और डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड उनका था. लेकिन फिर ग्रेजुअली जो है एजुकेशन बहुत पहले न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, बहुत शुरू में लिमिटेड एक ग्रुप हुआ करता था जो लिमिटेड एक ग्रुप हुआ करता था जो जिसको चांस मिलता था पढ़ने के लिए. लेकिन ग्रेजुअली 18th 19th सेंचुरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुली, स्कूल्स खुले. और हमारे कश्मीर में भी हार्डली 100 साल हुआ होगा, 150 साल यहाँ पे एजुकेशन शुरू हो गई. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे अब तब से
ठीक है, पहले लिमिटेड कुछ कोर्सेज हुआ करते थे कॉलेजेस में, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता और इंट्रोड्यूस होने लगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आ गया तो वो वाले सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने लगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। फिर अभी ये कंटिन्यूस एक प्रोग्रेस चल रहा है, अभी हमें नहीं पता आगे और क्या क्या चीज़ें आने वाली है, आगे और कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन नेचुरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो, और फिर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, या इस वक्त फिर हम मतलब इंडिया में, फिर इंडिया में भी डिफरेंट जो स्टेट्स है तो वहाँ पे भी अभी ग्रोथ हो रही है एजुकेशन की। मेरा आज तीसरा साल है इस कॉलेज में। मेरे ख्याल से ये कॉलेज काफ़ी ही अच्छा है और इन 3 सालों में इसने काफ़ी तरक्की की है। हर एक चीज़ में आगे है, चाहे वो डिबेट्स करना हो, कोई कंपटीशन हो, हर एक चीज़ में आगे है। और हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब है, लैब्स है, जो केमिस्ट्री लैब, जोलॉजी लैब, बॉटनी लैब, हर एक लैब हमारे पास अवेलेबल है। और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, हर एक जगह हमें वो सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी चीज़ हो वो हमें सपोर्ट करती है, हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखती है। थैंक यू। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हम अक्सर देखते हैं कश्मीर में ऐसा नैरेटिव बन गया है कि कॉलेज बच्चे अक्सर कम जाते हैं, कॉलेज स्किप करके वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाते हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई करते हैं और कॉलेज में उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो क्या बड़गाम में भी ऐसा रिवाज है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा रिवाज तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं, अपने प्रोफेसर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं वो। या जो एजुकेशनल सिस्टम है इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम, पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा जो डिग्री कॉलेज बीरवा है, we offer here different courses both in science and arts, and a large number of students are attending the classes and pursuing higher education. Here we need certain courses which are skill based, and in future we are collaborating with different institutes, and these courses will be offered to the degree college Birwa, and large number of students, particularly the females. We have a good ratio of female students of this area who are pursuing higher education, and in future we will seek more cooperation from the local populace so that there will be higher enrollment, particularly in the female education. सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 30-35 साल में अगर हम देखते हैं इंस्टेबिलिटी जो थी कश्मीर में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर को नुकसान पहुंचा है तो एजुकेशन ही है, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में हमने ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं देखा जहां हमें स्कूल्स बंद देखने को मिले, कॉलेजेस बंद देखने को मिले। तो मुझे बताइए पिछले 5 सालों में क्या आपको एजुकेशन सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नजर आती दिख रही है या नहीं? आफ्टर द गैप ऑफ दीज 5 years, जो भी इंसिडेंट्स थे, वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट्स, तो वो कम हो गए। तो स्कूल्स जो या कॉलेजेस जो बंद हुआ करते थे, तो नेचुरली जो है वो चीज़ें कम हो गई। तो स्टूडेंट्स का आना इन कॉलेजेस, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड करने लगे। तो नेचुरली जो है असर पड़ा इन चीज़ों की वजह से। तो आज अगर हम देखना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ रुख करते हैं। दे आर परस्यूइंग कैरियर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन कश्मीर एज वेल एज आउटसाइड कश्मीर। ह्यूमन वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सिचुएशंस होती है, हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। और वो जो क्रिएशन होती है डिफरेंट सिचुएशन की, वो भी एक ह्यूमन ही होता है। लाइक कोई आउटसाइड ह्यूमन वर्ल्ड से कोई नहीं आता है ना जो डिस्टर्बेंस लाता है। तो ये हम ही ह्यूमन पीपल ही है, ह्यूमन बींग्स ही है जो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट चीज़ें कर लेते हैं और डिफरेंट डिस्टर्बेंस भी होती है। हम नहीं कहेंगे कि हमेशा जो है स्टेबल रहे हर एक चीज़, तो होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन बेस्ट पार्ट ये होता है कि हाउ वन कैन कम आउट ऑफ दोज काइंड ऑफ लाइक सिचुएशंस, हाउ टू हैंडल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ
यहाँ पे भी या किसी भी जगह पे आप देखिए डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस होती है, लेकिन वो वहाँ से उनसे निकलते हैं और बस कुछ फेज होता है जहाँ पे होता है रुक जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो रुक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो शुक्र है कि जो भी कोई डिस्टर्बेंस हुई, जो भी कोई रीजंस थे, चाहे कोविड है, चाहे फिर ऑनलाइन, चाहे घरों में, लेकिन उनसे हम निकल के हम फिर एक बहुत स्ट्रीम लाइन हमारी आ गई है। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए वेल डिसिप्लिन्ड अटेंडेंस आप देख ले, फुल अटेंडेंस होती है और बहुत अच्छे से वो एक्टिवली इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और हम उनको बहुत बिजी रखते हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं मैक्सिमम टाइम उनका पूरा टाइम हो जाता है उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कभी क्लास में, कभी क्लास से बाहर, कभी डिफरेंट चीज़ों में। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हम बच्चे को छोड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो या जीसीआर पे, गूगल क्लासरूम पे, या मेल या व्हाटएवर व्हाट्सएप ग्रुप, शाम को आता है कि ये होमवर्क करके दीजिए। देन अकाउंटेबल इज पेरेंट, नॉट द टीचर। जब यहाँ से बोलते हैं उनको कि ना, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो बोलते हैं कि जी हाँ इतना ही, मतलब ये तो आपको करना ही करना है। सो जहाँ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर वो स्टूडेंट्स आते हैं सोसाइटी के जिनका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और उसमें हमारा इतना रोल है कि या गवर्नमेंट का वो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उतना मतलब अकाउंटेबल ये है कि मतलब उसमें ये पॉइंट है कि वहाँ पर ज़्यादा काम पेरेंट्स को करना पड़ता है। जहाँ तक अब जो पिछले 4-5 सालों का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली जो एक अनसर्टेनिटी होती थी कश्मीर में, मामूली सा पत्थर चलता था, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता था वो कॉलेजेस पे होता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स घर में बैठते थे और उसका खमियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि कोविड से भी जो प्रॉब्लम हुई, 2 साल हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल घर में बैठे, और वही लॉट जब हमें आज मिलता है कॉलेजेस में, तो दे आर वेरी मच, मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत कमज़ोर, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई है। 2 साल वो कम्प्लीटली घर में बैठे हैं, और जब वो कॉलेज में आते हैं तो बिल्कुल वो उतने 2 साल बिल्कुल पीछे हैं। बट आखिरकार जिम्मेदारी हम पे ही है, इस कौम पे ही है, हम उन बच्चों को नरिश करें, उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जो कुछ भी चाहे सियासी मसले हो, समाजी मसले हो, वो एक तरफ छोड़ के पढ़ाई पे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना करना चाहेंगे। एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें स्किल एनहांसमेंट की बात की गई है, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज की बात की गई है, यानी कि जैसा कश्मीर में पहले चलता आ रहा था कि सिर्फ एकेडमिक्स पे हम लोग फोकस करते थे, तो अब उससे एक नया पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। तो उससे मुझे बताइए कि बच्चों पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? So far as the new policy is concerned, NEP 2020, it is main thrust is on skill. देखिए, आज की इस दौर में हम चाहे कोई एक सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक नहीं रह सकते। हम वी शुड बी मल्टी टैलेंटेड, वी शुड नो ईच एंड, मतलब मैक्सिमम, आई कांट से द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट वी शुड नो द डिफरेंट लाइफ स्किल्स that are very important in our day-to-day life. Our students should be highly skilled in different professions, they should excel. और जहाँ तक पहले का जो एजुकेशन सिस्टम और आज का जो NEP है, उसमें जो मेन डिफरेंस मुझे लग रहा है कि, और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है बच्चों पे, कि पहले हम कंसंट्रेटेड थे विद अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम आर्ट्स की बात करेंगे, कोई एक रहा था इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था, बस वो उसी इंग्लिश लिटरेचर को पूरी जिंदगी पढ़ रहा था। लेकिन आज के इस दौर में हम इंग्लिश लिटरेचर के साथ हम उसको साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी एक पढ़ा रहे हैं, हम उसको एक स्किल भी सिखा रहे हैं, ताकि फॉर एग्जांपल वेल्डिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपने कॉलेज में, वेल्डिंग जो होती हैं, तो कल वो उसकी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली वो उसको मतलब अपनी ज़िंदगी में काम आ सकता है। तो ये मेन डिफरेंस हैं जो दैट वाज द नीड ऑफ एन आवर एंड द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट।
जो डिफरेंट जो कॉलेजेस है वहाँ पे भी नए नए अब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे भी हम जैसे बीरवा कॉलेज यहाँ पे भी हार्डली 2005 में ये कॉलेज बना है। 2005 से अभी तक अगर हम देखेंगे काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम नहीं कहेंगे कि एंड है, ये फाइनल है, और यहाँ पे और सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने की। और ख़ास तौर पे जो हम कह रहे हैं कि एनरोलमेंट जो कम हो गया है, एनरोलमेंट बेसिकली कम नहीं हो गया है क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो बहुत एक्सपैंड हो गया है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और खुले, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे और लाइक 12th के बाद अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स करे, तो वजह ये नहीं है ड्रॉप या कम रेट की कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट आगे नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि एजुकेशन बहुत एक्सपैंड हो गया है तो डिफरेंट जगहों पे वो जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो मतलब हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे भी एक हम डिफरेंट और प्रोग्रेस की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, हमने प्रपोजल भी भेजे है कि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, स्किल से रिलेटेड या जो बहुत इनोवेटिव सब्जेक्ट्स है, तो हमने वो फॉरवर्ड किए हैं, और भी और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है आगे इंशाल्लाह। तो अभी हम ये करेंगे। चाहूंगी कि जैसे हम देखते हैं अक्सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम देखते हैं उनकी एक तो सैलरी कम होती है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उन पे फोकस करते हैं। तो ऐसा क्यों है और क्या आपने क्या इकदाम उठाए हैं अपने टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी? नहीं, हमारा हम बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे जो है सब जगह, मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, यहाँ पे जो बेस्ट फैकल्टी है वो यहाँ पे, और इतना डेडिकेटेड है, इतना टाइम सिर्फ पढ़ाने में नहीं, पढ़ाई के बगैर इतने सारे एक्टिविटीज, इतने पर्सनल एक इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ, इतना डेडिकेटेड है, इतना उनको काउंसलिंग करते रहते हैं, उनके इतना ना पर्सनल वो बॉन्ड है, और उनको इतना अप्रिशिएट या इतना उनके साथ करते हैं कि वो डिफरेंट ना कि पढ़ाई सिर्फ, और डिफरेंट एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करें। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप देखें हाईली क्वालिफाइड, हाईली इतना पीएचडीज और हाईली लाइक बेस्ट स्टाफ हमारा यहाँ पे हमारे इस कॉलेज में। तो जो जानना चाहूंगी, मैं जीडीसी बीरवा में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछले महीने ज्वाइन किया है एंड मैं टंगमग से बिलोंग करता हूँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और मैंने बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ये कॉलेज इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग इट ऑल्सो। यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया जाता है बट हमें प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। यहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड विद PhDs, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है बच्चों को कैसे नर्चर करना है, कैसे पढ़ाना है, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम ज़रूरत होता है वो दे देते हैं, अगर हमें कभी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होते हैं वो कर देते हैं हमारे टीचर्स, एंड हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, इट्स गुड। देयर आर चेंजेस, जो नेसेसरी चेंजेस हो सकती है यहाँ पे, बट बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे प्रेजेंट है इस कॉलेज में। जितनी भी हमारी चीज़ें होती है वो फुलफिल हो जाती है यहाँ पे। और ये कॉलेज की लोकेशन के बारे में भी कहना चाहूँगा, ये अच्छी जगह पे है कॉलेज, बट कंसिडरिंग यहाँ पे आसपास में ब्रिक किल्न्स है तो थोड़ा सा पोल्यूशन का रहता है, बट हमारा कॉलेज है हाइट पे तो वो वहाँ से पोल्यूशन उतना नहीं होता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे है, अभी हमारी बात हुई यहाँ पे एनरोलमेंट की। मैं समझता हूँ कि एनरोलमेंट अगर हमें बढ़ानी है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को ये बोले कि हम आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एज फार एज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा इज़ कंसर्न, मैं अपने बच्चों को इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स है, फैसिलिटीज़ है, वो सारी यहाँ पे आपको है। हम यहाँ पे स्टाफ है, हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हमने श्रीनगर में भी देखा, बारामूला में भी देखा,
सब जगह की फैसिलिटीज देखी है, और जहां तक बात इस कॉलेज की है, इस कॉलेज में वो सब फैसिलिटीज हैं जो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए। आपका लाइब्रेरी का पार्ट, लैब्स का पार्ट, क्लासरूम्स का पार्ट, ये वाहिद कॉलेज यहां पे है इस इलाके में कि जहां पे सारे आपके क्लासरूम्स आपके इंटरनेट इनेबल्ड हैं। ये फैसिलिटीज शायद ही हुआ करती थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। दवा से क्या हो